और वो काफी जरूरी चीज होती है, जो हम भी सीख रहे हैं हम। और काफी इंडस्ट्री ने इसको सराहाया है। और जैसे अभी मनोज जी ने कहा कि हम बहुत सारे लैंग्वेजेस में पाठशाला लेके आएंगे। तो प्रवीण जी, आपका सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, लोगों ने काफी उसकी तारीफ की, तो इसलिए आपको अपने पब्लिक डिमांड से वापस लाया है। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ रैपो विद अ कस्टमर। तो प्रवीण जी, हम आपके पास जल्दी वापस आएंगे। उसके पहले हम शुक्रिया करना चाहेंगे वैशाली बैनर्जी का, जो प्लैटिनम गिल्ड इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर है, और हार्दिक जी, जो हार्दिक पारेख ज्वेलर्स जो नागपुर से है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैशाली जी के बारे में क्या कहूँ, लास्ट कितने सालों से मैं उनको देख रही हूँ। आज मैं जब उनका सीवी देख रही थी, सिंस 2000 शी इज सिंस द इंसेप्शन वो प्लैटिनम गिल के साथ है। और एक मिनट के लिए मुझे लगा 20 साल, आई मीन मैं इनको 20 सालों से देख रही हूँ, और शी इज एज यंग एज शी वाज देन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और प्लैटिनम गिल ने इंडिया में जो तरक्की की है आज, इतने सारे शहरों में आज हम प्लैटिनम देखते हैं, उसमें वैशाली जी का काफी बड़ा हाथ है। और बहुत ही एंटरप्राइजिंग है, बहुत ट्रेनिंग के बारे में वो काफी एक्टिव खुद है। प्लैटिनम गिल्ड बहुत सारे सिटीज में जाके उनके जो ज्वेलर्स है उनको ट्रेन करते हैं। तो वैशाली जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे, हिंदी में कोशिश कीजिए कि आप हमारी पाठशाला के बारे में क्या सोचती है, और ट्रेनिंग के बारे में आप क्या हमें कहना चाहेंगे। सो वैशाली बैनर्जी, ओवर टू यू। थैंक यू क्रांति, थैंक यू वेरी मच। पर मैं हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बोलूंगी, क्योंकि लोग को समझना चाहिए। मैं प्रवीण जी के जैसे तेलुगु वेलुगु में पता नहीं है मुझे, तो इसीलिए। बट थैंक यू सो मच, इट्स अ रियल प्लेजर। वैशाली जी थोड़ा, हाँ जी, करीब आइए, वो बहुत दूर से कह रहा है फेस। सॉरी, ये ठीक है? हाँ जी, ये ठीक है? मतलब थोड़ा कैमरे के नजदीक आइए तो थोड़ा बेटर। और मेरे ख्याल से पीछे से लाइट आ रही है, तो इसलिए कोई ये भी यू कम फॉरवर्ड लिटिल बिट। हाँ, दिस इज बेटर। हाँ, मैं I'm absolutely forward now. Okay, so thank you, and it's really a pleasure to be here with everybody and to just have this opportunity to talk to everybody. Jab Kranti came to me and said, Pathshala mein, can you come as a guest speaker? I immediately agreed, because training is really, really important. PGI, from the time we started, we said training has to be absolutely a part of this process, because unless people are trained, unless there is knowledge, what can we do? And learning, I don't think there is any time that you should stop learning. Every day we should learn, and learning will make us grow. And during this time of the lockdown, it's great, because we are getting so many opportunities to learn, to improve ourselves and learn new things, so the different things that we are able to learn, all of it will help us in our life and our business. And especially I'll talk about building rapport with the customers, which is today's topic, because this is absolutely critical to business. And you all know, because when at the store, when you're dealing with the customer, it is between two people or maximum three people if somebody else comes. So this rapport is absolutely crucial, because there is comfort. The buyer, the customer is coming to you wanting to buy a piece of jewelry. Jewelry is so special. It is maybe it is an emotional moment. Maybe they want to celebrate something. For them, this is one big thing, that they are coming to a jewelry store, coming to you and buying a piece of jewelry. You, of course, maybe, the person at the counter has, dealing with so many people. But for the customer, this is just that one person. And at that point in time, it is so important that there is a level of comfort,
that you get to know the customer, because once you get to know the customer, then you can suggest things. Once you start talking and suggesting things, the customer actually feels that this person actually knows me, knows what I want. And therefore a relationship starts. And that relationship makes you come back to the store, builds loyalty. And all of this has been important right through. But it will be even more important now, because right now there will be a customer who will be not in the mindset that they were before COVID. So there will be anxiety, they will be cautious. So more than anything else, they will need this friend on the other side, somebody who will understand them. So I think this is an excellent topic. And I feel that, you know, by bringing you experts who can train, give you some ideas, and you know, some solution ideas that you can take with yourself as we go back to work and we get into our daily life, this will come into great use. Because for me, knowledge is always there. Knowledge will just come out when the time comes, and when there is need for that knowledge to come. So to me, training is crucial. We have been doing training for the past 20 years. Last year, we trained some 15,000 people. Amazing. We want to train even more, because knowledge is king. And to, you know, I think knowledge is also makes you just personally grow. So every day, if we can get knowledge, it's wonderful. So all the very best to all of you. And my big congratulations to the organizers, because this is really a great platform. Thank you. Without Pathshala, we wouldn't have been where we are. It has been absolutely there in our, you know, because we have gone through that Pathshala, we have been able to come where we are. So well done. Thank you so much. Absolutely. Thank you. Thank you so much, Vaishali. I think this 5-10 minutes with what we get from the guest speaker, you know, it's like the सार आपके अनुभव का सार आप हमें 5 मिनट में देते हो. That is so very important. So it's a perfect combination of a practical knowledge, practical experience, and the teacher. So thank you so much. And I think every topic also, what you told us just now, it's like, no, the diamond has got so many facets. So one topic could be taught by various teachers in various angles. So it's so very important, so very basic, but very important. So thank you so much, Vaishali. क्रांति जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था वैशाली जी से, बस 1 मिनट में अगर आंसर मिल सके. हाँ, कुछ रिटेलर्स का मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. ये क्वेश्चन आ रहा था कि आप प्लैटिनम को कैसे देख रहे हैं इंडिया में ज्वेलरी कितना एक्सेप्टेंस होगी, और इंडिया में प्लैटिनम का मुझे आगे जो है बढ़ेगा, फीलिंग द स्कोप ऑफ स्केल और स्कोप ऑफ प्लैटिनम इन इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री, जस्ट इन 1 मिनट अगर आप कर. yes, absolutely. अभी तो scope is very good. Platinum has actually been growing every year. Even last year, the growth was very strong. Platinum is available in Metro City, Tier 1, Tier 2, Tier 3. There are about 1,600 stores all over India who are stocking and selling Platinum. And वैशाली जी, अगर आप कुछ फिगर्स के साथ बात कर सकें कि लास्ट ईयर कितना था या उसके पहले कितना था और आगे कितना. तो हमारे जो growth, last year growth was about close to 20%. रिटेल सेल्स में, सेल्स ग्रोथ में कह रही हूँ, फैब्रिकेशन नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, पर सेल्स में. और as I said, अभी about 1,600 stores all over India are keeping platinum. If you see, if we are talking to a very young audience, platinum though is focused on very young audience, 20 to 35, men and women. And this audience, if you look at, about 85% of this audience knows about platinum. So it's a very high awareness of platinum. And today, the knowledge about platinum is there, the demand is there. And today, if you see the platinum price, at a better price.
because it is currently going lower than gold. So the preciousness of the metal is still there. So it is the most precious metal. It is 30 times more rare than gold. So it's really precious. But because of all the macro things, the price today is at a big advantage. So if you look at many retailers, they have actually made bimetal product, and it's kept at various sections, and people are able to upsell. Even gold customers are buying into platinum today. In the past, it was only diamonds and platinum. Today, there is plain platinum, there is platinum and gold. So all categories. We started with only rings. Now there is women's, there's necklace, chain pendant, there is men's jewelry. We have just launched men's jewelry last year. Men's jewelry is doing very well for us also. That category alone has seen about 30% growth in volume. Great. Congratulations. So I think that is to you, and such a big achievement in your leadership. Thank you very much. We are very positive. Yes, we are very positive, and we believe, and we are going to, as soon as the market opens, we are going to start our marketing, because we believe that there is great opportunity to be had. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Vaishali. Lovely. Thank you so much. Thank you, Vaishali. So, please be there as much as possible. I know you're very busy, but we'll be happy if you could attend the session with us. But thank you once again. So Hardik ji, आपके पास आते हैं अभी. Hardik ji is from Parekh Brothers, Nagpur. हार्दिक जी, आपका पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है. और हम आपसे, आप सुन रहे हैं हार्दिक जी? Yeah, I can hear you. आप हमको सुन पा रहे हैं? हाँ जी. तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि आप पाठशाला के बारे में क्या सोचते हैं. हमें आपसे भी कुछ सीखना मिले. आज का जो सेशन है आपको पता ही है कि how to build a rapport with the customer. So Hardik ji, over to you. Firstly, thank you team Pathshala. Thank you Kranti, thank you Manoj bhai for giving me this opportunity. It feels great to be here. Sumit bhai bhi hain Hardik bhai हमारे. Thank you Sumit bhai for giving me this opportunity, and it will be a great honor to help the industry in however manner we can. So हार्दिक भाई, एक और रिक्वेस्ट हिंदी में मैं पूरा आगे का सेशन मोस्टली आई विल कैरी फॉरवर्ड इन हिंदी. श्योर. So आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ रैपो विद कस्टमर्स. सो आई एम जस्ट टेलिंग कि जो मेरे को लगता है कि आर गुड पॉइंट्स टुवर्ड्स द building of rapport with customers. I'll lay them for you. Firstly, I think initially जो था, our jewelry industry has been going on for years, like 1,000+ years. So सबसे पहले it was only dependent upon trust. But I think now it is not just the trust. It is divided into two parts. एक तो रहेगा personal relationship which we have with our customer, and the second thing is the relationship of the customer with the product, known as the product relationship also. So if we are making personal relationship, हमारा main motive रहना चाहिए long term bonding with the customers, so that building an attachment with the customer is very important. अगर जो आज ही हम सोचे कि आज ही हम attachment कर ले और आज के आज sales कर ले, so it is not going to help us in long term. But हमारा जो industry है, एक बार trust build हो गया तो फिर it gives you a lot of opportunity to expand. And अगर जो आपका किसी के साथ अच्छा rapport है तो ये भी होता है कि आपको दूसरी if they don't buy it from your shop, but अगर जो आपका relationship अच्छा है उनके साथ तो they can send you customers. हमारे industry में सबसे ज़्यादा sales जो होती है that is on the basis of word of mouth, and that is the best marketing strategy in our industry. So customer relationship in long term is very important. Second thing is keeping the right product mix. हमारे जो products रहते हैं they should be kept in a right product mix. जैसे कि we are from Maharashtra, तो हमारे यहाँ पे Maharashtrian customer आते हैं. Even if my product is very beautiful and very fancy, but अगर जो हमारा customer जो है उनको हमारा jewelry नहीं पसंद आता है because being very fancy and it is not being to giving you the yellow tinge which is required in Maharashtra, तो आपका sales difficult हो जाता है. So it is very important to have the right product mix also, along with the right products and the design. And customer जो रहता है जब jewelry लेता है, they are not buying it every day. They are buying it
on and off, and it is a long term planning which जिसके बाद वो लोग product लेते हैं. So they come to your shop once, but जो relationship है that goes on for years. सेकेंड थिंग आई वुड ले डाउन कि जो हम लोग डेटा भी लेते हैं कस्टमर्स का, आज के डेट में इतनी टेक्नोलॉजी आती है कि हर एक ज्वेलरी शोरूम में सबसे पहले डेटा लेते हैं, सबका कस्टमर का नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, बर्थडेट्स लिखते हैं. बट द राइट वे टू डू इज टेकिंग ऑल द डेटा एंड नोइंग इट. पता चलता है कि हम लोग ने किसी को SMS शूट किया है ऑन देयर बर्थडेज कि यू विल गेट 20% ऑफ, बट वो कस्टमर हमारे शॉप के अंदर आता है एंड वी डोंट नो द पर्सन. So this is a technology gap which many jewelers are facing nowadays. So we have to take the data in such a way कि हमको पता रहे कि हमारा कस्टमर कौन है, हमारे यहाँ पे वो पहले आया था, तो what had they bought before. एक अगर जो उनको पता चलता है कि we know कि उन्होंने last time क्या खरीदा था, so this will make them very happy. And so data maintenance is important, but doing it in the right way is more important. Third thing I wanted to say is this is a very good opportunity which I feel for years. जैसे कार इंडस्ट्री होती है, उधर कार्स में like मेरे काफी friends हैं who have dealership of cars. They say कि they don't have profit when they sell the car, but they have profit when they service the car. Same way jewelry industry जो है, if we move towards servicing industry along with this thing, which we are already doing it, but हम उस चीज को importance नहीं देते. अगर जो हम लोग भी repairs and maintenance को आगे लेके जाते हैं, जैसे कि you give a 1 year maintenance free या तो फिर 3 months maintenance free, जैसे आपका कभी स्टोन निकल गया या यू जस्ट एक पॉलिश कर दिया, एक झटका मार दिया प्रोडक्ट को, इस वे से कस्टमर हमारे शोरूम भी आता है. प्लस हम लोग हमारी ज्वेलरी के बारे में या नए प्रोडक्ट्स के बारे में फेस टू फेस बता सकते हैं. सो we are already doing it in our showroom and it is a good opportunity. And हर एक कस्टमर यानी कि जो नहीं आने वाला था वो भी शोरूम के अंदर आता है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है. दिस इज अ वेरी गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी विच आई फील, जिससे कस्टमर और हमारा रिलेशनशिप बना हुआ रहता है, बिकॉज यू हैव अ रीजन टू गो फॉरवर्ड. एक्सीलेंट एक्सीलेंट हार्दिक जी, बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज आपने हमें दिया. थैंक यू सो मच. एंड आप प्लीज बने रहिए हमारे पाठशाला में. आज के हमारे गुरुजी प्रवीण जी है, तो प्रवीण जी आपसे ज्यादा वक्त हम नहीं ले रहे. वी आर स्टार्टिंग एग्जैक्टली एट 4:18. सो प्लीज अपनी पाठशाला शुरू कीजिए. I would like to still again thanks everyone for giving me this opportunity and go ahead. Thanks. Thank you. नहीं, हार्दिक भाई, हम आपसे कुछ और भी क्वेश्चन अभी पूछने वाले हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप थोड़ा हमारे साथ बने. Definitely I'll be there. Sure. चलिए, पहले तो बहुत बहुत मुबारक और बधाई पूरी टीम को. मनोज जी, सुमित जी, क्रांति जी, आप लोग एक एक्सेलेंट जॉब कर रहे हैं एंड मजा आ रहा है देख के. एंड पीपल आर रियली इसका फायदा उठा रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है. एंड आई थैंक वैशाली जी, उनके तो चेहरे पे इतना लस्टर है एंड द वे शी वाज टॉकिंग, वाओ. यानी मेरे जितने ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं, शी हरसेल्फ इज ए ओशन ऑफ नॉलेज. एंड हार्दिक जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं, एकदम सटीक, जो कि ट्रेड में होनी चाहिए. एंड आई लव्ड योर सर्विस इंडस्ट्री को बना के कैसे आप कस्टमर को इनवाइट कर सकते हो. मैंने नोट भी किया है हार्दिक भाई. आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. राइट, थैंक यू सो मच. Thank you. राइट, तो चलिए वी विल स्टार्ट टुडे सेशन. और आज का हमारा जो सेशन है, इट इज ऑन रैपो बिल्डिंग. इट इज रिलेटेड टू रैपो. 1 second. Kranti ji, is the screen coming up? Hello? Yes, it's visible. It's visible. It is visible. I'll just make it larger. आ रही है. हाँ जी. Right? This is हाँ better, जी. right? Yes. चलिए, let us start today's session, जो कि है रैपो बिल्डिंग. लेकिन रैपो बिल्डिंग का सेशन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा कि एक बेटा अपने बाप के पास जाके, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो पिताजी के पास जाके पूछा, पिताजी मुझे बिजनेस के बारे में सिखाइए, मुझे बिजनेस के बारे में सिखाइए. एंड पिताजी ने उसको एक नगीना दिया. बोला, जा इसको मार्केट में अकवा के ला कि कितने में ये बिकता है. तो वो लड़का लेके बाहर गया. बाहर कोई एक बैठे हुए थे साहब, उनको पूछा कि ये नगीना आप लेंगे क्या, और इसका दाम कितना देंगे. तो उसने बताया 1000 रुपए. तो वो बोला, ठीक है, मैं पिताजी से
पूछ के हूँ। और आगे जाने के बाद एक दुकान वाले के पास गया और दुकान वाले ने उसका दाम रखा 10,000 रुपए। 10,000 सुनते ही वो भाग के वापस पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी मुझे समझ में नहीं आया, ये आपने जो नगीना दिया वो एक बार 1,000 रुपए में लोगों ने मांगा और अब दूसरी दुकान में गया वहां 10,000 में मांगा, आखिर बात क्या है? पिताजी बोले, एक काम कर, एक बड़े जौहरी के पास जा, राइट, हार्दिक भाई के पास जा, जाके हार्दिक भाई को पूछ कि इसकी वैल्यू कितने देंगे। और हार्दिक भाई ने कहा कि भाई इसका तो 1,00,000 रुपया मैं दूंगा। एंड वो बड़ा एकदम टेंशन में आ गया कि आखिर बात क्या है। फिर पिताजी के पास गया और पिताजी ने कहा, तू एक काम कर, एक एंटीक डीलर के पास जा और वहां मालूम करके आ। और वो एंटीक डीलर ने उसका दाम 10,00,000 रुपये रखा, 10,00,000 रुपए रखा। वो लेके वापिस पिताजी के पास आया और पिताजी ने उसे समझाया कि ये नगीना वही था, ये नगीना वही था, लेकिन देखने वालों की नजर अलग अलग थी, हर आदमी ने उसको अलग अलग आंका। तो रैपो में आप अपनी वैल्यूएशन कैसा बढ़ाएं ताकि लोग आपको 10,00,000 रुपए की वैल्यूएशन करे, ना कि 1,000 रुपए की। दैट इज व्हाट ये स्टोरी से मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं कि आप इस सेशन के बाद अपनी वैल्यूएशन को ऊंचाइयों की तरफ लेके जाइए। देन दिस सेशन विल बी वेरी वेरी पावरफुल। एंड लेट अस स्टार्ट विद रैपो बिल्डिंग। ये रैपो बिल्डिंग का सबसे पहला, one second, I put in the wrong slide, one second. रैपो बिल्डिंग के लिए सबसे पहला जो हमारा, one second, I just bungled up the last one. Sorry, just give me a second please. I'm just on the learning mode when it comes to all this. So Pathshala, yeah. So sorry about it. Right, so there we go. So rapport building is all about building the rapport. And सबसे पहले जब कस्टमर आपके दुकान में एंटर होता है, हेलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जब कस्टमर आपकी दुकान में एंटर होता है तो माल उसे नहीं दिखता, प्रोडक्ट उसे नहीं दिखता, सबसे पहले आप दिखते हो, सबसे पहले आप दिखते हो। यू आर द फेस ऑफ योर स्टोर, यू आर द ब्रांड ऑफ योर स्टोर इन द इनिशियल फेज, सो अपीयरेंस इज द फर्स्ट गेटवे। आपकी रैपो बिल्डिंग टेक्निक्स तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको जो मैंने स्टोरी बताई है, आपको अपनी वैल्यूएशन बढ़ाना है। सो हाउ यू लुक मैटर्स, लुक योर बेस्ट एंड ग्रूमिंग मैटर्स। अभी कितने लोगों को मैं देखता हूं उनकी ग्रूमिंग प्रॉपर नहीं होती। सो बी क्लीन शेव्ड इफ यू आर ऑन द सेल्स, बी क्लीन शेव्ड, ड्रेस अप वेल, अगर आपका ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड में आइए, एंड लुक द बेस्ट व्हाट यू आर ऑन द स्क्रीन, राइट? एंड व्हाट यू वेयर मैटर्स, हाउ यू कैरी योरसेल्फ मैटर्स। अगर लेडीज वर्क कर रहे हैं, प्लीट डाल के एकदम स्मार्ट, शो योरसेल्फ एट द टॉप मोस्ट लेवल, ऐसे लगना चाहिए कि ये नगीना एकदम करोड़ों का है। then the customer will start valuing your store and then her perception will change. The whole thing that appearance does is it changes the perception, यानी देखने का नजरिया बदल देता है कस्टमर का जैसे ही वे दुकान में एंटर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मैन इन द मिरर मैटर्स, यानी आपका चेहरा बहुत बहुत कीमती है। आप किस तरीके से ड्रेस करते हो, कैसे अपीयर होते हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू रैपो बिल्डिंग। तो बी द बेस्ट व्हेन इट कम्स, राइट? एंड नाउ आगे बढ़ते हैं कि रैपो बिल्डिंग आखिर है क्या, रैपो बिल्डिंग आखिर है क्या। लेकिन रैपो के बारे में मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूं। मर्सिडीज के शोरूम में एक साहब मर्सिडीज खरीदने गए और उन्होंने मर्सिडीज वाले को पूछा कि साहब ये मर्सिडीज का दाम कितना है, एंड जो भी है बार्गेन करके ही बॉट द कार। एंड चलाते चलाते गाड़ी 20 किलोमीटर के बाद जाके रुक गई एंड वो मर्सिडीज को फोन मिलाया और चिल्लाने लगा कि साहब इतनी महंगी गाड़ी मैंने खरीदी और गाड़ी रुक गई। तो सामने वाले ने कहा सर ऐसे होना नहीं चाहिए, हमारा रैपो इतना हाई है। बोले सर फिर रुकी कैसे? बोले सर आपने पेट्रोल डलवाया क्या? बोले नहीं सर मैंने तो पेट्रोल डलाया ही नहीं। एंड देन ही सेज फिर 20 किलोमीटर चली कैसे? तो बोला सर ये हमारी रैपो के कारण 20 किलोमीटर बिना पेट्रोल के भी चल गई। तो जब आपकी रैपो स्ट्रांग होगी तो बिना पेट्रोल के भी गाड़ी चलेगी, सो रैपो इज ऑल अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। आप क्या हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हेलो, आप क्या हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं? आप बहुत बात करते हो ये सोचते हैं, या ज्यादा सेल करता है ये सोचते हैं,
या आपके बारे में कुछ अच्छी उनके बारे में ओपिनियन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रैपो इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, भरोसा कैसे बढ़ाएं, दैट इज व्हाट रैपो डज। और एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी, चुंबक की तरह, चुंबक की तरह। ये सेशन खत्म होने के बाद मेरा दावा है आप लोग चुंबक बन जाएंगे, मैग्नेट्स, मैग्नेट्स। जो कस्टमर आपके दुकान में आया, अगर आपके टेक्निक्स, वेरी वेरी सिंपल टेक्निक्स मैं बताऊंगा, लेकिन इसको फॉलो करना है, हमारी खून में, हमारे आत्मा में उतारना है, देन ये आपको बहुत सक्सेस देगा, सेल्स में बहुत सक्सेस देगा। लेट अस अंडरस्टैंड, ये रैपो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, आपको अपने कोलिग्स के साथ, बिकॉज एक बिजनेस इज अ टोटल टीम वर्क, टीम वर्क। तो जब आप रैपो बिल्ड करोगे, आपके टीम में भी मजा आएगा, होल टीम विल वर्क टुगेदर। एंड फैमिली में भी रैपो बिल्डिंग काम आएगा, क्योंकि एक खुश आदमी जो घर पे है वही खुशी से दुकान में काम कर सकता है, दुकान में काम कर सकता है। तो ये रैपो बिल्डिंग के टेक्निक्स सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि इवन फॉर योर हाउस, योर फैमिली एंड दुनिया के साथ रैपो कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। लेट अस मूव अहेड टू द फर्स्ट थिंग टुवर्ड्स रैपो बिल्डिंग, विच इज स्माइल। हेलो, वेरी वेरी सिंपल टेक्निक, लेकिन मुस्कुराओ, लेकिन मुस्कुराओ। आई टेल पीपल, अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो सेल्स काउंटर छोड़ दीजिए, सेल्स काउंटर छोड़ दीजिए। टाटा वाले ने एक एड दिया था, लवली एड, आई लव दैट एड। उसमें लिखा था, वांटेड सेल्स पीपल, प्लीज डोंट अप्लाई इफ यू कांट स्माइल। यानी अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो सेल्स के पोजीशन के लिए आप अपना एप्लीकेशन भी मत भिजाइए, मत भिजाइए, राइट। तो मैं एक ट्रेनिंग कर रहा था और वहां पर एक बड़े स्टोर की ट्रेनिंग थी। उनके एचआर ने मुझे पूछा, सर कुछ लोगों को मुस्कुराहट आती नहीं, हंसने की बहुत कोशिश करते हैं फिर भी हंस नहीं सकते, कुछ ऐसे चेहरे होते हैं, राइट। तो अब क्या करें? मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एचआर वाले हो, इसको कलेक्शन के ऊपर डालो। जो हंस नहीं सकता है, जिसकी सूरत एकदम लो है, इसको कलेक्शन में डालो, देखो कैसे फटाफट आपका कलेक्शन आता है। आदमी बोलेगा यार इसको पैसा देके भेजा, ये बिल्कुल मुस्कुराता नहीं है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग इज लर्न टू स्माइल, मुस्कुराना सीखो। एंड जेन्युइन, जेन्युइन। अब आप लोग, कस्टमर एंटर होता है एंड आप लोग एक फेक स्माइल, झूठी स्माइल, आप हेलो मैडम, हेलो हेलो, सब समझता है कस्टमर आपकी जो अंदर की स्माइल, आत्मा की स्माइल कैसी है और बनावटी स्माइल कैसी है, ये दिख के आती है। सो लेट दैट स्माइल बी जेन्युइन, एकदम सच्ची स्माइल। और कहते हैं कि ये कर्व्ड लाइन है जो हर चीज सीधी कर देती है। कुछ प्रॉब्लम आ गया, आप स्माइल दो, सब कुछ सीधा हो जाएगा, राइट। और स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल्स विथ यू। आप मुस्कुराओ, सामने वाले भी मुस्कुराएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, आप मुस्कुराओ, सामने वाले भी मुस्कुराएंगे। और मैं लिखता भी बहुत अच्छा हूं शायरी, तो 2 लाइन इसके लिए बोलता हूं, अगर पसंद आए वहीं से मुस्कुराना आप लोग। कि 32 दांतों का राज निराला। देखिए, ऊपर वाले ने हर किसी को 32 दांत दिए हैं, काला हो या गोरा हो, चेहरे का रंग कैसा भी हो, दांत सफेद दिए हैं, दांत सफेद दिए हैं। किसी के नहीं है तो मुझे आके मिलना, आई वुड लाइक टू मीट दैट जेंटलमैन, राइट। 32 दांतों का राज निराला, चाहे हो रंग गोरा चाहे हो काला, चाहे हो रंग गोरा चाहे हो काला, दिल से मुस्कुराओ, दिल से मुस्कुराओ, खोल देता ये किस्मत का ताला। अगर आप मुस्कुराना सीख लिए ना, ट्रस्ट मी, हर किस्मत का ताला, सेल्स का ताला, दरवाजा इसी से खुलता है। तो सबसे पहली चीज रैपो बिल्डिंग की, स्माइल, एंड इट इज कंटेजियस। जब आप मुस्कुराते हो, लोग मुस्कुराते हैं, एक एनर्जी फ्लो होती है, एंड इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू द सेल्स, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू द सेल्स। एंड कहते हैं कि इट ओपन्स द डोर टू ऑल रिलेशंस। हर रिश्तों का दरवाजा एक मुस्कुराहट खोल देती है, एक मुस्कुराहट खोल देती है। आप, स्माइल हैज नो लैंग्वेज। अब यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही थी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। एंड सबसे अच्छी बात यह है, स्माइल की तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है। कोई तमिल में मुस्कुराना है, कोई हिंदी में, कोई तेलुगु में, कुछ नहीं। ऊपर वाले ने सबको वही तरीका दिया है मुस्कुराने का। तो दिल खोल के मुस्कुराओ, दिल खोल के मुस्कुराओ। कैन वी ऑल गिव अ थम्स अप? हेलो, सब लोग एक थम्स अप दीजिए मुझे, जरा मेरा जोश आता है। सिटिंग देयर, यस, फैंटास्टिक। यानी इसका मतलब आप लोग अब मुस्कुराएंगे और दिल खोल के मुस्कुराओ, एंड यू सी योर सेल्स रॉकेट। आपकी सेल्स एकदम ऊंचाई की तरफ छुएगी, राइट। सो लेट अस मूव अहेड। सो पहला रैपो बिल्डिंग का टेक्निक, वेरी वेरी सिंपल, स्माइल, दिल खोल के मुस्कुराओ। सेकेंड टेक्निक, वेरी सिंपल अगेन, पर्सन्स नेम, नाम में जादू है। ये छोटे छोटे टेक्निक्स है आपको जो मैं बता रहा हूं, लेकिन यही टेक्निक्स चलते हैं।
फंडामेंटल्स कभी भी वही रहते हैं, लेकिन आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है, आपको बार बार इसको यूज करना पड़ता है, आपको अपनी लाइफ के अंदर लाना पड़ता है। लर्न टू रिमेंबर द। सबसे पहली चीज, किसी का नाम याद रखने के लिए आपको नाम पूछना पड़ेगा, आपको नाम पूछना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर एंटर हुआ और आप पूछे मैडम कैन आई नो योर नेम, ऐसे नहीं करना है, राइट। आपको क्या करना है, जैसे कस्टमर बैठी सामान देख रही है, धीरे से बात करते करते मैडम कैन आई नो योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है, बात करते करते स्टाइल से, राइट। आपको उस तरीके से नाम पूछना है। और नाम पूछने के बाद नाम को याद रखने की आदत डालो, नाम को याद रखने की आदत डालो। यानी समझ लीजिए अभी क्रांति जी है, अभी क्रांति जी का नाम मुझे याद रखना है तो मैं क्रांति पिक्चर याद रखता हूं, तो मुझे क्रांति जी का नाम पक्का याद हो जाता। क्रांति पिक्चर याद रखता हूं तो इमीडिएटली नाम याद रखना शुरू हो जाता है। तो आप नाम को रिपीट करो धीरे धीरे मन के अंदर, एंड आपको हर चीज इमीडिएटली याद हो जाएगी, राइट। सेकेंड, जब भी आप सेल कर रहे हो, ये मैं आपको जो बोल रहा हूं, हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप सेल कर रहे हो बार बार वो कस्टमर का नाम लो। जैसे आप नेकलेस दिखा रहे हो, क्रांति जी ये नेकलेस कैसी है, ओ फैंटास्टिक, राइट। समझ लीजिए उस लेडी का नाम श्रीदेवी है, मेरी फेवरेट हीरोइन, राइट। तो आप बोलिए श्रीदेवी जी ये नेकलेस कैसी है, हाँ श्रीदेवी जी इसके अंदर आप देखिए डायमंड्स कैसे हैं। जितने बार आप नाम लोगे उतना कनेक्ट बनेगा। हेलो हेलो, नाम से कनेक्ट बनता है। कोई रोड पे जा रहे हैं और वहां पे किसी का नाम पुकारे, समझ लीजिए आप गौरव, गौरव का नाम पुकारे, तो जितने भी गौरव वहां पर है पलट कर देखेंगे, जितने भी गौरव वहां पर है पलट कर देखेंगे। नाम में इतनी ताकत है, नाम में इतनी ताकत है। तो नाम बार 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 आप लेना शुरू करो, राइट। सो उससे जो है आपका जुड़ना शुरू होता है, जुड़ना शुरू होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। इसको आप बिजनेस में बार बार लाइए। जैसे जैसे दिखा रहे हो आप बार बार बोलो। मैडम बोलने की जगह आप उनका नाम बोलिए, या दीदी बोलने की जगह उनका नाम लीजिए, अक्का बोलने की जगह उनका नाम लीजिए, राइट। जब आप नाम लेंगे, जैसे मैं बोलूंगा कि पूजा ये देखिए नेकलेस कैसी है, पूजा ये देखिए कितना फैंटास्टिक डिजाइन है, पूजा जी ये देखिए अभी बन के आया है, हाँ राइट। जैसे जैसे मैं ये बताऊंगा पीपल विल स्टार्ट टू कनेक्ट। जैसे ही मैंने पूजा का नाम लिया, देखो पूजा का स्क्रीन पे पिक्चर आ गया, कितना कनेक्ट हो गई पूजा। जैसे ही मैंने गौरव का नाम लिया, गौरव कनेक्ट हो गया, राइट। नाम में इतनी बड़ी ताकत है, ओके। और नाम के लिए भी मैं आपको 2 लाइन बताता हूं, क्योंकि मेरा एक शौक है, मैं ट्रेनिंग्स के अंदर मेरी शायरियों को भी मिक्स करता हूं, एंड जो भी सब्जेक्ट है उसी पे लिखता हूं मैं, जो सब्जेक्ट है उसी पे लिखता हूं कि अपना नाम सभी को भाता। देखिए हर किसी को अपना नाम पसंद है, कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जिसको उसका नाम पसंद नहीं है, क्योंकि उससे ही हमारा अस्तित्व है, उससे ही हमारी पहचान है। अपना नाम सभी को भाता, हर कोई खुद को ही चाहता, करना तुम दिल से काम, करना तुम दिल से काम, पर मत भूलो लेते रहना नाम, पर मत भूलो लेते रहना नाम। तो बार 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 आप नाम लेते रहिए, एंड दैट विल टेक द बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। आपका बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सेल्स रॉकेट होगा, कस्टमर की तरफ आपका रैपो बढ़ेगा। जैसे ही वापस वो कस्टमर आएगी ना, आपके लिए ही पूछेगी, आपके लिए ही पूछेगी, वो चला के पूछेगी कि फलाना सेल्समैन कहाँ है, उसको बुलाओ, क्योंकि आपने उसको कनेक्ट किया बार बार नाम लेके, बार बार नाम लेके, राइट। सो द सेकेंड वेरी वेरी सिंपल टेक्निक, वेरी सिंपल टेक्निक इज टेक द पर्सन्स नेम। कस्टमर का नाम पहले पूछो, स्टाइल से पूछो, उसके बाद रिपीट करो 10 बार ताकि उसका नाम याद होए। एंड नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर अंदर आता है, जैसे ही अंदर आए, रेड्डी साहब कैसे है, तो रेड्डी साहब की छाती फूल गई एकदम, अरे वाह मुझे याद रखे। गुप्ता जी कैसे है, और गुप्ता जी एकदम ओहो हो क्या बात है, ये कस्टमर को याद रखता है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न टू रिमेंबर द कस्टमर्स नेम, ओके। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। बहुत ही सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जो सिंपल चीजें उसी में सबसे ज्यादा दौलत छुपी होती है, और उसी में सबसे बड़ा राज होता है। आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने की आदत डालो। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप क्वेश्चंस पूछने की आदत डालिए, और उसके बाद आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको आएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको आएंगे। इट ओपन्स द कन्वर्सेशन, यानी बातचीत करने के लिए ये दरवाजा खोलता है आपको क्वेश्चंस पूछने के बाद में ही। अभी जैसे यहां पर वैशाली जी ने भी बताया कि जब आप पूछेंगे तभी आपको पता चलेगा, जब आप पूछेंगे तभी आपको पता चलेगा, वरना उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। अब कैसे क्वेश्चंस पूछना चाहिए मैं लाइव आपको बताता हूं। कस्टमर एंटर हुआ,
व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस, ऐसे क्या कॉमन क्वेश्चंस है जो आप एक कस्टमर से पूछ सकते हो? हेलो, जो आप एक कस्टमर से पूछ सकते हो। जैसे कस्टमर बैठा, बैठने के बाद आपने उनका नाम पूछा, समझ लीजिए उन्होंने नाम बोला माधुरी। माधुरी, ठीक है माधुरी मैडम बैठिए, नेकलेस देख रहे हैं, देखते देखते माधुरी जी आप कहाँ रह रहे हो? आर यू स्टेइंग हियर ओनली? आप क्वेश्चन पूछिए, वेरी जनरल क्वेश्चन। वो आंसर देगी नहीं नहीं मैं जुबली हिल्स में रह रही हूँ, राइट, हैदराबाद में जुबली हिल्स, राइट। तो जैसे ही उसने कहा जुबली हिल्स में रह रही हूँ, ओके फैंटास्टिक, तो ये आप किसके लिए आप देख रहे हो? शी सेज मेरी डॉटर की शादी है। वाओ फैंटास्टिक, ये वाओ आपकी डिक्शनरी में डाल दो, ये मेरा फेवरेट वर्ड है। हेलो एवरीबडी इनटू सेल्स, ये वाओ वर्ड अपने दिमाग में छाप लो। जैसे कस्टमर बोलता है वाओ, जितने बार आप वाओ यूज करोगे ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ द सेल वाज डन। वाओ एंड देयर इज नो हाउ, इट ऑटोमेटिकली हैपेंस, राइट। तो वाओ आपकी बेटी की शादी है, कहाँ है? देन शी सेज फिल्म सिटी में है। ओह लवली मैडम, फैंटास्टिक। तो जैसे जैसे देख रहे हैं आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते जाइए जिससे वो क्लोज आए, जिससे वो क्लोज आए। तो आपकी बेटी कहाँ, यहीं पे पढ़ रही है? नो नो शी इज इन अमेरिका। ओह लवली, अमेरिका में कहाँ है मैडम? ओ शी इज इन वर्जीनिया। ओह लवली, वर्जीनिया में है, फैंटास्टिक। तो आपको क्वेश्चंस पूछने का स्टाइल, पूछने की आदत और पूछने का एक तरीका दरवाजा खोलता है रिलेशंस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आप जितना पूछोगे उतना क्लोज होगे, उतना क्लोज होगे। एंड मैं सब सेल्स वालों को बोलता हूं, पहले 5 मिनट, पहले 5 मिनट प्रोडक्ट की जल्दबाजी मत कीजिए। आप प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, लेकिन कनेक्ट, कनेक्ट। आई टॉक अबाउट 3 C's ऑफ सेलिंग, 3 C's। पहला सी कनेक्ट, दूसरा सी कन्वे एंड थर्ड सी इज कन्विंस। हेलो वेरी इंपॉर्टेंट, पहला सी कनेक्ट, सेकंड सी कन्वे यानी आप उनको समझाइए, थर्ड चीज कन्विंस यानी उनको कुछ डाउट्स है तो कन्विंस करके माल बेचिए। तो देखिए आपके सेठ ने जो भी मेहनत की, माल ला लिया, माल ला लिया। इमेजिन आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास चार्जर है, आपके पास सॉकेट है, तीनों चीजें हैं आपके पास, मोबाइल है, सॉकेट है, चार्जर है, लेकिन कनेक्ट नहीं करे। हेलो कनेक्ट नहीं करे, विल द पावर फ्लो? विल द पावर फ्लो? पावर नहीं आएगा, पावर नहीं आएगा। इसी तरीके से आपके पास माल बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, आप कन्विंस भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपने कनेक्शन ही नहीं बनाया। और ये कनेक्शन बनता है क्वेश्चंस पूछने से। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछोगे, जितने आप फैमिली के बारे में बात करोगे, उतना आप उस कस्टमर के करीब आओगे, उतना आपका बिजनेस आसान हो जाएगा, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, धीरे धीरे बड़े स्टाइल से आप क्वेश्चंस पूछते जाइए। एंड उसके बाद देखिए आपके सेल्स की सीमा एकदम ऊंचाई की ओर, आपके सेल्स की सीमा एकदम ऊंचाई की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आस्क क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस पे भी मैं आपको कुछ लाइन बोलता हूं। प्रश्नों से खुलता दिल का दरवाजा, प्रश्नों से खुलता दिल का दरवाजा। देखिए दिल के अंदर क्या है, या प्रश्न करेंगे तो ही पता चलेगा, राइट। तो प्रश्नों से खुलता दिल का दरवाजा, भरोसा बढ़ेगा आपका ज्यादा, भरोसा बढ़ेगा आपका ज्यादा। जितना पूछा उतना पहचानोगे। अब आपके ऊपर है, अगर आप कम पूछोगे तो कम पहचानोगे, ज्यादा पूछोगे तो ज्यादा पहचानोगे। जितना पूछा उतना पहचानोगे, खामोश रहो तो कैसे जानोगे? तो खामोशी नहीं रहना है, क्वेश्चंस पूछना है। जितना आप जानोगे कस्टमर के बारे में, जितना आप जानोगे कि किस रीजन से ले रही है, जितना आप बजट के बारे में जानोगे, उतना सेल आपका क्लोज आ जाएगा। एंड देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग द हाइट्स इन सेल्स। ऊंचाइयों की तरफ आपका सेल बढ़ जाएगा, राइट। सो दैट इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट वन, सुनो। हेलो, सुनने की आदत डालो। हर किसी का इस दुनिया में यही एक प्रॉब्लम है कि सामने वाला मेरी सुनता नहीं, सामने वाला मेरी सुनता नहीं। देखिए एक बार हस्बैंड वाइफ का रेगुलर झगड़ा हो रहा था एंड वो मेरे पास काउंसलिंग को आए। काउंसलिंग को आने के बाद मैं हस्बैंड को कुछ काउंसलिंग दिया। काउंसलिंग दिया तो हस्बैंड घर पे पहुंचा और बीवी कंप्लेंट्स चालू कर दी, कंप्लेंट्स चालू कर दी। एंड मेरी काउंसलिंग के बाद में हस्बैंड क्या किया, जैसे ही वो चालू हुई, एक कुर्सी खींचा, बाजू बिठाया और बोला, बोलो क्या बोलना चाह रही हो, आज तुम्हारी पूरी बातें मैं सुनना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं डिनर करूंगा। और हाथ में हाथ लिया, चलो बोलो। जैसी बीवी ने ये सुना, पत्नी ने ये सुना, बोली नहीं नहीं पूरे प्रॉब्लम्स खत्म। बोले क्यों, अभी तो इतने प्रॉब्लम्स थे। बोले यही प्रॉब्लम था, आप मेरी सुनते कहां थे, आप मेरी सुनते कहां थे। तो सुनने की आदत डालो सबसे पहले।
और ऊपर वाले ने जब हमारा शरीर बनाया तो मुंह एक दिया और कान दो दिए। हेलो, मुंह एक दिया और कान दो दिए, यानी बोलो कम और सुनो ज्यादा। बोलो कम और सुनो ज्यादा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन मोर देन यू स्पीक। लिसन मोर देन यू स्पीक। अब सुनना कैसे है? सुनना भी एक्टिव लिसनर की तरह। एक्टिव लिसनर का मतलब क्या है? अभी देखिए, पिताजी ऑफिस से आए, थक के आए, एंड थक के आने के बाद से टीवी देख रहे हैं। वो टीवी देख रहे हैं, रिमोट लगा के, ही सीइंग द महाभारत। इतने में बेटा आया, आके बोला, पापा मेरे स्कूल का जो है एक ट्रिप निकला है। एंड डैडी ऐसे देख रहे हैं टीवी एंड बोल रहे हैं, हाँ बोल, अच्छा कहाँ पे? कुल्लू मनाली जा रहे? ओके, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, 5,000 मम्मी से बात कर ले तू, ठीक है, हेलो, अच्छी बात है, ठीक है। अभी देखिए, पिताजी सुन रहे हैं, लेकिन क्या रियल में सुन रहे हैं? हेलो, नॉट एट ऑल। उनका दिमाग दूसरी जगह और सुन रहे हैं, और बेटे को अंदर से गुस्सा आ रहा है। उसको पता है पिताजी सुन रहे लेकिन नहीं सुन रहे। तो आपको एक्टिव लिसनर बनना है। जब कस्टमर से आप बात करते हो, मुंडी को हिलाइए, ओके फैंटास्टिक मैडम, ओह वाओ, एक्सप्रेशंस लाइए, कनेक्ट होइए। जब आप बात करते हो, एक्टिव लिसनिंग कीजिए। आपके बॉडी का प्रयोग करो, हाथों का प्रयोग करो, मुंडी को नॉड करो। अगर नहीं नहीं मैडम, दिस डिजाइन इज वाओ मैडम, इस तरीके से आपको सुनना है। जब वो कहती है कि मेरी बेटी के लिए चाहिए, ओके लवली, ओके फैंटास्टिक, ओ शादी है, ओके राइट राइट फैंटास्टिक, दिस इज एक्टिव लिसनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग वर्सेस एक्टिव लिसनिंग। और जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हो, आपका बिजनेस रॉकेट होता है, रॉकेट होता है, एंड इट मेक्स देम फील इंपॉर्टेंट। जब एक्टिव लिसनिंग करते हो, इट मेक्स देम फील इंपॉर्टेंट। एंड एक्टिव लिसनिंग में एक टेक्निक दे रहा हूं, हेलो, you can write down this. This is a very important technique called paraphrasing. Paraphrasing मतलब कस्टमर जो वर्ड बोलता है, वही वर्ड को आप वापस से रिपीट करो, वही वर्ड को आप वापस से रिपीट करो। एग्जाम्पल, कस्टमर कहती है कि मुझे मेरी बेटी के लिए एक नेकलेस चाहिए, उसकी शादी है, उसकी शादी है। आप सेम वर्ड को रिपीट करो कि मैडम वाओ, आपकी बेटी की शादी है राइट, आपकी बेटी की शादी है राइट, यू वांटेड अ डायमंड नेकलेस राइट। आपने कुछ स्पेशल नहीं बोला, सेम वर्ड्स आपने रिपीट किए, एंड शी फील्स इंपॉर्टेंट एंड कनेक्टेड टू यू, एंड योर सेल इज डन, योर सेल इज डन। आपका सेल भागेगा। जो भी कस्टमर बोलती है उसको रिपीट करो। वो कहती है कि मुझे 5 लाख में नेकलेस चाहिए, सिंपल काम करना है आपको, वापस से बोलना है, मैडम आपने कहा आपको 5 लाख में नेकलेस चाहिए राइट, सेम वर्ड्स रिपीट करना है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग। एंड इससे उनको बहुत अच्छा फील होता है, दे फील इंपॉर्टेंट and they come closer to you, right? Can we do all that? Right? Very very important, very very important. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं to the next one, which is the most beautiful one, which is praise. तारीफ, 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 तारीफ। हर किसी को दुनिया में तारीफ पसंद है, हर किसी को दुनिया में तारीफ पसंद है। लोग तारीफ के लिए मरते हैं। हेलो, लोग तारीफ के लिए मरते हैं। आप बिलीव करो, काफी कस्टमर्स अपनी तारीफ सुनने शॉपिंग करने आते हैं। कैन यू बिलीव दैट? काफी कस्टमर्स अपनी तारीफ सुनने के लिए बिजनेस करने के लिए आते हैं आपके साथ में। जब वो आते हैं, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, अगर समझ लीजिए वो लेडी बहुत अच्छा ड्रेस करती है, आप उनको बोलिए कि वाह भाभी जी, आप बहुत अच्छा कैरी करते खुद को। हेलो, उसके हस्बैंड में भी नहीं बोला होगा राइट, और आप बोलते हैं तो उसको इतनी खुशी मिलती कि यार मैं घर से इतना अच्छा ड्रेस होके निकलती हूँ, मुझे कभी कोई घर में नहीं बोला, और इस जौहरी की दुकान में जैसी मैं एंटर हुई, ये सेल्स वाला मुझे बोलता है कि भाभी जी आप कितनी अच्छी तरीके से कैरी करते हो। हेलो, योर सेल इज डन, योर सेल इज डन। माल दिखाने के पहले आपका सेल हो चुका है। आप तारीफ करने के लिए आपके शब्दों का प्रॉपर प्रयोग करो, जो अच्छे शब्द होते हैं उसको यूज करो। जैसे ही उसने नेकलेस पहना, हेलो, जैसे ही उसने नेकलेस पहना, आपका फोकस उसके चेहरे पे, और आप बोलना वाओ, ये आप पे बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा, ये आपको बहुत सेट हो रहा, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मजाक से कहता हूं कि जब भी कोई लेडी एक समझ लीजिए कॉकटेल रिंग लेती है, कॉकटेल रिंग यहाँ पे पहनती है वो, और पहन के किट्टी पार्टी में वो ऐसे बैठती है। हेलो, किट्टी पार्टी में वो ऐसे बैठती है, जब तक 20 लोग बोले नहीं भाभी जी ये नई अंगूठी लाए क्या, ये कहां से लेके आए, कितने की आई, तब तक ये उंगली नीचे नहीं आती, तब तक ये उंगली नीचे नहीं आती। और अगर 20 लोगों ने तारीफ नहीं की तो अगले दिन वो अंगूठी आपकी दुकान में आ जाएगी।
अगले दिन वो अंगूठी आपकी दुकान में आ जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रेज। आप तारीफ करना सीखो। जितना आप तारीफ करोगे उतना आपका बिजनेस रॉकेट होगा, उतना आपका बिजनेस रॉकेट होगा। जब आप तारीफ करते हो ना, दे फील स्पेशल, दे फील स्पेशल। उनको बड़ी खुशी मिलती है कि वाओ ये मेरी तारीफ कर रहा है। तो लुक एट वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स टू प्रेज। अभी क्या क्या तारीफ कर सकते हो? आपका कोई कस्टमर है जो 25 से 30 साल से आप ही के पास आ रहा है, आप ही के पास आ रहा है, लुक फॉर रीजंस टू प्रेज। ढूंढो क्या क्या चीजें आप प्रेस कर सकते हो। तो आप उसको बोलिए कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार है, वी आर थैंकफुल टू यू कि आप 25 से 30 साल से हमारी ही दुकान पे शॉप कर रहे हो। वी आर ब्लेस्ड एंड यू आर अवर प्रिविलेज कस्टमर। वाओ, दे विल फील वेरी गुड। अरे वाह, इसको ये भी पता है कि मैं इतने साल से आ रहा हूं एंड इसको इसकी खुशी है, ही इज प्रेजिंग मी, राइट। कोई कस्टमर बार्गेन नहीं करता है, कोई कस्टमर बार्गेन नहीं करता है, तो वो कस्टमर को भी आप बोलिए कि सर यू आर फैंटास्टिक, यू आर फैंटास्टिक। और आप बार्गेन नहीं करते हो, भगवान करे हमको सब कस्टमर आप ही की तरह मिले, आप ही की तरह मिले। जैसा ही वो सुना उसकी छाती फूल गई एंड शी फील्स ग्रेट। वाओ, दिस जेंटलमैन एक्नॉलेजेस, ये मुझे तारीफ कर रहा है कि मैं बार्गेन नहीं करती हूँ एंड मेरा दावा है उसके बाद वो चिट्ठी आपको दे देगी कि सर आप ही दाम कर दो, आप ही दाम कर दो। क्या रेट लगाना है आपके हिसाब से ही आप रेट लगा लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की व्हेन इट कम्स टू your rapport building, when it comes to your rapport building, right? So when you praise, you always raise your chances, always you raise your chances in life. So I will just sum up what we did. rapport building में सबसे पहली चीज जो है appearance, and appearance में आप कोई भी चांस मत लीजिए, be your best। रोज जब आप ऑफिस को जाओ, रोज जब आप ऑफिस को जाओ, look into the mirror and tell yourself I love myself, मैं खुद से प्यार करता हूं। ये आवाज आनी चाहिए कि मैं बेस्ट ड्रेस्ड हूं और आज मैं मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा हूं। जब आप खुद को लव करोगे तभी लोग आपको लव करेंगे। बाल आपके निकल रहे हैं, नाखून आपके बड़े हैं, यू हैव नॉट ट्रिम्ड थिंग्स प्रॉपरली, राइट, आपका क्लीन शेव्ड नहीं है एंड यू से कि भाई मेरे पास में ये दिक्कत है, कोई बात नहीं चलेगी। सेल्स के अंदर अगर आपका परफॉर्मेंस टॉप आना है, यू हैव टू लुक द बेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रैपो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपना भरोसा बढ़ाने की कोशिश करो, राइट। भरोसे के लिए मुस्कुराओ, खिड़की को खोलो, तब आपका भरोसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाम में इतनी ताकत है। एंड स्पेलिंग्स, हेलो, वन पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल, स्पेलिंग्स जो है प्रॉपरली लिखो। लोगों को गुस्सा आता है, श्रीदेवी SREEDEVI SRIDEVI, छोटा सा मिस्टेक एंड दिक्कत होती है। एंड किसी ने मुझे पूछा कि सर इससे दिक्कत क्या होती है, मैंने कहा आपके चेकबुक के ऊपर आप रॉन्ग स्पेलिंग लिख के भेजाओ और देखो चेक पास होता है क्या, आपका चेक फेल हो जाएगा, आपका चेक फेल हो जाएगा। तो स्पेलिंग्स पे भी आप ध्यान दो। किताब उनके सामने रखो, बिल बुक, और उनको रिपेयर बुक दो एंड बोलो मैडम कैन आई नो योर स्पेलिंग, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चंस पूछने की आप आदत डालो। जितने आप क्वेश्चंस पूछोगे उतना ज्यादा सीखोगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज्यादा आपका सेल नजदीक आएगा, उतना ज्यादा आपका सेल नजदीक आएगा और आपका रैपो उस कस्टमर के साथ बढ़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब आओगे, आपको पता है कि उसकी बेटी है तो आप बेटी के बारे में क्वेश्चन पूछोगे, आपको पता है कि बेटा है और जो है अभी अभी शादी हुई है तो आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछोगे। यानी अगले सेल के लिए भी आपके पास ओपनिंग मिलती है क्योंकि आपको उस कस्टमर की नॉलेज है, आपको उस कस्टमर की नॉलेज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सुनने की आदत जितना ज्यादा आप डालोगे उतना ज्यादा कस्टमर को लगेगा ये आदमी मेरे साथ है, मेरे साथ है। एंड एक्टिव लिसनिंग करो, आपकी हेड को शेक करते रहो, बी विद देम एंड पैराफ्रेज करो, वर्ड्स को रिपीट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये करते हो तब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो अपने सेल के। एंड आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट, तारीफ करने में कभी संकोच नहीं करना। कस्टमर कभी गलत फील नहीं करता है। थोड़े सेल्समैन मुझे पूछते हैं सर वो लेडीज बुरा मान ली तो, हेलो, वो लेडीज बुरा मान ली तो, आप प्रॉपर शब्दों का इस्तेमाल करो, वो बुरा नहीं मानेगी, उल्टा अच्छा मानेगी, उल्टा अच्छा मानेगी। ये तारीफ के लिए भी मैं आपको बताता हूं 2 लाइन। उसने तारीफ की कुछ इस तरह, उसने तारीफ की कुछ इस तरह कि अपनी ही तस्वीर को मैं 100 बार देखता रहा, अपनी ही तस्वीर को मैं 100 बार देखता रहा। जब आप तारीफ करोगे ना, एक्चुअली यू आर गिविंग हर हैप्पीनेस। एंड जब वो वापस अपने घर को जाएगी, वो हैप्पीनेस फैक्टर लेके जाएगी और तहे जिंदगी
आपकी खुशियां मनाएगी, दैट शी विल बी अ वेरी हैप्पी कस्टमर। और जो हैप्पी कस्टमर्स होते हैं वो बार बार वापिस आते हैं, 10 लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं, 10 लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं। और ये टेक्निक्स आपको रेगुलरली फॉलो करनी है। वेरी वेरी सिंपल टेक्निक्स, लेकिन प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस घर में शुरू करो आज ही से। सबसे पहले अपनी पत्नी को स्माइल दो और जाकर उसको थैंक यू करो कि इतना वो लॉकडाउन के अंदर भी काम कर रही है। तब आप देखो आपकी आदत बढ़ेगी और आप तारीफ करने की शुरुआत कर चुके होंगे। एंड करते करते गलतियां होगी। तो इस सेशन का मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट एंडिंग जो है, मेरी एक बहुत अच्छी कविता हरिवंश राय बच्चन जी की है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कि हम काम करते हैं लेकिन करते करते गलतियां हमारे से होती है, हर किसी से होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिससे गलती नहीं होती, लेकिन कंटिन्यूअस हमको अपना कर्तव्य, हमारा कर्म करना चाहिए। तो कहते हैं असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आपको बार बार खुद को एनालाइज करना है, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफलता ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। डटे रहो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कोई टेढ़ी कस्टमर आ गई, भाग जाते, अरे भाई तू अटेंड कर, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे से ये नहीं होता। नो 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 नो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसीलिए जब तक आप लोग परफॉर्म नहीं करोगे, अगर आप जाके रजिस्टर में साइन करोगे दैट मैं स्टोर में एंटर हो चुका हूं, लेकिन परफॉर्मेंस फैक्टर नहीं आया, तो आपकी जय जयकार होने वाली नहीं है, राइट। सो दिस इज द बेसिक स्मॉल थिंग्स अबाउट रैपो बिल्डिंग। एंड जो आज यहाँ पे पाठशाला के मंच पे जो सबके साथ हो रहा है, उसके लिए मैं एक स्टोरी के साथ मेरा सेशन एंड करना चाहूंगा कि कुआलालंपुर में एक गौतम बुद्ध की प्रतिमा थी जो सोने की थी, और वहां के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। और वहां पर वॉर हो गया, युद्ध छिड़ गया, और युद्ध में उन्होंने वो गौतम बुद्ध की प्रतिमा को ले जाकर जंगल में छुपा दिया। 2-3 साल तक ये युद्ध चला। लोग उस प्रतिमा के बारे में भूल गए। और एक ट्रैवलर, एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा था, गुजरते गुजरते वहां बैठा और उसका हाथ उस कुछ मूर्ति के टफ सरफेस पे पड़ा, और उसने देखा यार कुछ इसके पीछे दिख रहा है। धूल, मट्टी, झाड़ियां जमा हो गई थी। वो धीरे धीरे वो मट्टी को हटाने लगा, धूल को हटाने लगा, झाड़ियों को हटाने लगा। हटाते कुछ चमकने लगा। और जब हटाकर उसने देखा तो अंदर से सोने के गौतम बुद्ध थे। तो दोस्तों, मैं सबसे एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि हम सब लोग एनलाइटेंड है, हमारे अंदर भी सोना है। आप सब लोग सोने के हो, लेकिन हम सब पे धूल जम चुकी है। पास्ट फेलियर्स, डांटने फटकारने की, जैसे किसी का बॉस कहता है, किसी के पिताजी कहते हैं तू बैल है, तू सुधर नहीं सकता, तो ये धूल जम चुकी है। कोई लोगों को है भूल चुके हैं टेक्निक्स। तो ये पाठशाला का ऐसा मंच है, ब्यूटीफुल मंच है, जहां पर ये धूल आपके ऊपर से निकाली जा रही है और आपकी चमक वापस लाई जा रही है, ताकि आपका सोना चमके और आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़े। तो मेरा सबसे यही है कि इन छोटी टेक्निक्स को यूज करो, दिल से यूज करो, और आप अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाओ, ताकि आपकी जिंदगी में बहुत तरक्की आए, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो और आप भी उसके साथ साथ ग्रो हो, राइट। सो थैंक यू सो मच। और क्रांति जी, नाउ द माइक इज फॉर यू, एंड कुछ क्वेश्चंस भी है तो वी कैन ऑलवेज शेयर विद पीपल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रविंद्र जी। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं भी स्टूडेंट बन गई थी। तो आप रिएक्शंस भी, बहुत लोग जुड़े थे हमारे साथ, आई मीन वी कैन सी दोस रिएक्शंस। सो सुमित जी, या आई एम हियर। हाँ जी, मैं हूँ यहाँ पे। आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, बट 2 मिनट बिफोर यू स्टार्ट, आई थिंक अपने ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगी कि रविवार के दिन शाम को 4 बजे मराठी पाठशाला का पहला दिन होगा। क्या बात। और बहुत ही बढ़िया टीचर है हमारे साथ, अमोल जी, जो 20-25 इयर्स ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है उनका, और आशीष पेठे और सौरभ गाडगिल हमारे गेस्ट है अभी के। दिस वाज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑडियंस। फैंटास्टिक। थैंक यू। आपके साथ प्रवीण जी डेफिनेटली तेलुगु प्लान करेंगे अगले हफ्ते का।
हाँ, मैं भी प्रैक्टिस कर लूंगा तब तक। और ये जो हमारा पाठशाला का मंच है, इतना हाँ। बढ़िया मंच है, ट्रस्ट में मैं यही बता रहा हूँ। तो आप लोग सबकी जो है सोने को अंदर से चमका रहे हैं, और ताकि सोने की दुकानें जोरदार चले, जोरदार चले। हमारी टैगलाइन ही वही ना, मेक द इंडस्ट्री पावरफुल, नेशन अपने आप पावरफुल होगा। सो ये कोशिश है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सुमित जी आप पूछिए क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच प्रवीण जी, यू हैड एन एक्सीलेंट सेशन आपका। थैंक यू सुमित जी। आपके सेशन में जो मुझे एक चीज समझ में आया कि फॉर अ सेल्स पर्सन को सक्सेसफुल होने के लिए उसे हैप्पी रहना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। ओह यस। राइट, बट एट द सेम टाइम वो सेल्स पर्सन का खुद का पर्सनल लाइफ भी होता है। व्हाट इफ ही इज नॉट हैप्पी इन हिज पर्सनल लाइफ, एंड हाउ कैन ही कीप देम बोथ सेपरेट? दोनों को अलग अलग कैसे रख सकता है माल बेचते वक्त? सर मैं कभी भी बोलता हूँ कि एक सक्सेसफुल आदमी, एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास जाके लोग पूछे कि सर आप सदा हैप्पी कैसे दिखते हो, तो उन्होंने कहा भाई मैंने जो है सिंपल फॉर्मूला अपनाया है। घर में एक तिजोरी रखी, और तिजोरी में मैं क्या करता हूँ, जब जब ऑफिस जाता हूँ मेरे पूरे प्रॉब्लम्स निकालता हूँ, वो तिजोरी में डालता हूँ, उसे ताला कर देता हूँ, राइट, और मैं दुकान पहुंचता हूँ। तो यानी मेरे घर के प्रॉब्लम्स मैं घर में छोड़ के आता हूँ। और जब दुकान में एक और तिजोरी रखी है, दुकान के जितने प्रॉब्लम्स है मैं वो तिजोरी खोलता हूँ और उस तिजोरी में डालता हूँ, और उसके बाद वापस पहुंचता हूँ। तो मैं घर का प्रॉब्लम दुकान नहीं ले जाता, दुकान का प्रॉब्लम घर पे नहीं लेके आता, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और सुमित जी, जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हैप्पी लाइफ के लिए, ये जो मेरे सेशन से मैं इसलिए बोलता हूं कि एक आदमी को जब ये फॉलो घर में करेगा वो, तब उसकी गृहस्थी भी अच्छी होगी, और जब वो खुश होगा तो ऑटोमेटिकली वो खुशी लेकर दुकान पर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स को घर में भी फॉलो करना है ताकि घर में भी खुशी आए। वो बीवी की तारीफ करेगा तो नेचुरली पत्नी खुश होगी, और खुशी खुशी उसे काम पे भेजाएगी, तो वो खुशी ही बांटेगा। राइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। या सर एक और छोटा क्वेश्चन था। आपके सेशन में था कि वी शुड एनकरेज द सेल्स पीपल टू आस्क क्वेश्चंस टू द कस्टमर को हमें क्वेश्चंस पूछना चाहिए। जी। बट एट द सेम टाइम बहुत कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनका प्राइवेसी इन्वेड हो रहा है, and they should be left alone. So how do you handle such customers if they want to go by your formula? सर ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि क्या है, आपको प्राइवेसी को इंट्रूड नहीं करना है, इसीलिए जवान के जादू से यहाँ पे कस्टमर का जो खुद नहीं है वाकिफ। सीनियर प्रवीण जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज म्यूट हो गया। या सर। हाँ सर। तो यहीं पे सीनियरिटी जो है सेल्समैन की काम आती है, क्योंकि उसको बार बार जो है इतने साल से एक आदत बन गई है, तो वो बड़े ही सटीक तरीके से, यानी इन्वेड नहीं करके धीरे धीरे जैसे पहले स्मॉल क्वेश्चंस पूछे, कस्टमर का एक नजरिया देखे। कोई कस्टमर अगर ज्यादा बात नहीं करता है तो उसकी प्राइवेसी इंक्लूड ना करें, लेकिन जो कस्टमर बात करता है तो उससे दिल खोल के बात करे। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक के बाद दो के बाद 3 विजिट के अंदर वो भी क्लोज हो जाएगा, तब वो खुल के बात करेगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई अगर रिजर्व्ड है और उसको लगता है कि मेरी प्राइवेसी इंक्लूड हो रही है, बट जनरल क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए क्या क्वेश्चंस पूछने हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी को ये नहीं पूछ सकते कि आपकी शादी हो चुकी है क्या मैडम, तो दैट माइट बी अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन, वो कस्टमर उठ के शायद चली जाएगी, राइट। तो क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक देयर आर, यानी मैं तो ट्रेनिंग में यहाँ तक कि सेट ऑफ क्वेश्चन देता हूँ पूरे पार्टिसिपेंट्स को कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आप बार बार पूछो, एंड दैट इज वेरी इजी टू आंसर, हर आदमी आंसर करेगा, राइट। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। एंड एक सुमित जी, एक और मेरा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि 5 मिनट है हमारे पास। तो हाँ बताइए। प्रवीण जी आप कुछ बताना चाहेंगे? उससे पहले एक शायरी आपके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। जरूर साहब, इरशाद। प्रवीण जी, आपके जबान के जादू से आप खुद नहीं हैं वाकिफ। प्रवीण जी, आपके जबान के जादू से आप खुद नहीं है वाकिफ, ये उसे भी बोलना सिखा देगा जो बचपन से। क्या बात है, वाह 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 वाह, लवली, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि सामने वाला इतना इंस्पायर हो जाए। ये मैं दिल से लिखता हूँ सर, एक्चुअली हर चीज और कनेक्ट करके लिखता हूँ, लेकिन एक क्योंकि हमारे पास टाइम है एंड आई थॉट कि एक्चुअली वी हैव 5 मिनट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में एक आप क्वेश्चन का बीच में जवाब, क्वेश्चन एक छोटा
एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। बहुत सारे वो चैट में भी ये क्वेश्चन आया है जी कि आप बोलते हो हाँ जी कि जो सेल्स फोर्स है वो सामने वाले का नाम लेके बोले या उनको पूछें। हाँ जी। अगर वो सेल्स पर्सन का उम्र और जो कस्टमर का उम्र है उसमें बहुत फर्क है, तो उस केस में भी नाम पूछना चाहिए कि क्या करना चाहिए? ऐसा एक चैट में ये क्वेश्चन आया, इसलिए मैं आपसे। हाँ, जनरली क्या होता है कि दैट लेडी इज 65-70, राइट? तो आप बिल्कुल नाम पूछना चाहिए और उसके नाम के साथ जो सीनियरिटी है, जैसे हमारे पास साउथ में यूज करते हैं अम्मा, हमारे पास साउथ में यूज करते हैं अम्मा, और कोई अक्का यूज करता है, नॉर्थ में जीजी यूज करते हैं या दीदी यूज करते हैं। तो आप नाम पूछिए और उसके साथ उसको प्रीफिक्स कीजिए। आप ये बोलिए कि लक्ष्मी अम्मा, राइट? देन शी विल फील नाइस। तो नाम पूछने से कनेक्शन जरूर बढ़ता है और नाम पूछना चाहिए। अगर सीनियर्स भी है तो जरूर पूछिए, लेकिन उसके साथ आप आगे, जैसे कोई है बड़े सीनियर है जेंट्स में भी, तो आप उनको बोलिए कि राहुल सर, राहुल बोलिए, साथ में सर भी बोलिए, बिकॉज ही सीनियर, राइट? देन यू नो थिंग्स गेट वेरी कनेक्टेड। सो ये एक बहुत स्ट्रांग चीज है एंड अच्छा क्वेश्चन है। तो नाम जरूर पूछना चाहिए, इससे कनेक्शन बनता है। एंड मैं आपको मेरे ट्रेनिंग का एक ब्रह्मास्त्र देता हूं हर एक को, जो मेरा एक बहुत ही सॉलिड फॉर्मूला है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस यानी हर कोई सेल्समैन आके मुझे बोलता है सर हमारे पास ऑब्जेक्शन बहुत आते हैं कि तुम्हारा दाम ज्यादा है, तुम्हारा गोल्ड रेट ऐसा है, तुम्हारा वेस्टेज ऐसा है, राइट? सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम। ये क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें और हम इनके ऑब्जेक्शंस को कैसे नीचे करें, इसके लिए मेरा एक सॉलिड फॉर्मूला है। 3 वर्ड्स है जो ब्रह्मास्त्र काम आते हैं, फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील, फेल्ट एंड फाउंड, वेरी वेरी सॉलिड टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, जो आप लोग अपने वोकैबुलरी में उतार लीजिए। जैसे कस्टमर ने कहा कि आपका डायमंड का रेट ज्यादा है, हेलो ज्यादा है, तो आपको कहना है मैडम आई नो हाउ यू आर फीलिंग, मैं समझ रहा हूं आप कैसे फील कर रहे हो, इवन आई फेल्ट द सेम, मुझे भी लगा मेरा दाम ज्यादा है, बट आई फाउंड दैट वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव। हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हैंडलिंग ऑब्जेक्शन के हर एरिया में फिट होता है। फील, फेल्ट, फाउंड आप यूज करो, आप जादू की तरह ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकोगे। पहला जब आप करते हो आई नो हाउ यू आर फीलिंग, मैं समझ रहा हूं कि आप कैसे फील कर रहे हो, तो कस्टमर को लगेगा अच्छा, यानी कि ये समझ रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ, ओके फैंटास्टिक। देन आप कह रहे हो कि इवन आई फेल्ट द सेम, मुझे भी ऐसे लगा कि हमारा दाम ज्यादा है, तो उसको लगेगा अच्छा तो मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। ये 2 में ही वो कस्टमर आपकी हो गई, उसका माइंड का विंडो खुलता है। देन आप फाउंड बोलो, आपका हैंडलिंग ऑब्जेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करो आप लोग। हर ऑब्जेक्शन, घर में आप पहुंचते हो कोई ऑब्जेक्शन है, बच्चे का कोई ऑब्जेक्शन है और कस्टमर के कुछ ऑब्जेक्शंस है, आप इसी तरीके से, कोई पच्ची का आइटम काला हो गया, कस्टमर आके चिल्ला रही है आपके ऊपर, चिल्ला रही है कुंदन का आइटम काला हो गया, तो आप बोलो मैडम आई नो हाउ यू आर फीलिंग, इवन आई फेल्ट इट हैज टर्न्ड ब्लैक, बट आई फाउंड दैट ऑक्सीडेशन होता है कभी, जिसके कारण सिल्वर और ऑक्सीजन मिलकर सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म होता है और कालापन आता है। मैं आपको सर्विस देने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, बिकॉज वी हैड सम टाइम, आई थॉट आई विल शेयर। तो ये फील, फेल्ट, फाउंड को अपनी लाइफ में सेल्स की उतार लो। थैंक यू। तो बहुत ही सॉलिड। क्रांति जी, मैं चाहूँ, हाँ ये हार्दिक भाई को एक बार वापस लाइन पे लाएंगे। हाँ एक मिनट, ही इज देयर। यस हार्दिक जी। हाय, गुड इवनिंग। हाँ हार्दिक भाई, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए आए हैं, उसमें एक क्वेश्चन किसी खास का है, वो ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो शहर में जो ज्वेलर होते हैं और जब कस्टमर आते हैं तो डायमंड 2 तरह के, मान ली एग्जांपल दे रहे हैं, एक कोई ज्वेलर ए है जो अच्छे डायमंड बेचता है, मतलब अच्छे मींस हाई क्वालिटी डायमंड बेचता है, कस्टमर ए, यानी समझो कि आपका कोई सेल्समैन है, आपका बाजू के दुकान में हल्के डायमंड बिकते हैं, 30,000 के डायमंड बिकते हैं, और आपके पास 40,000 के अच्छे वाले डायमंड बिकते हैं। तो सेल्समैन के पास जब वो कस्टमर आता है और बोलता है भैया ये बाजू के दुकान में तो 30,000 की डायमंड मिलते हैं, आपके डायमंड बहुत महंगे हैं, और जोर से पहली क्वेश्चन, वो पहला आंसर वही दे देता है, भैया डायमंड रेट क्या है? 40,000। अरे यार आपके तो बहुत महंगे हैं, बाजू में तो 30,000 का डायमंड रेट मिलता है। तो उससे जो सेल्समैन है वो बहुत डिप्रेस हो जाता है, वो उसको कैसे समझाए, क्वालिटी कैसे समझाए, क्योंकि कस्टमर को उतना क्वालिटी समझता नहीं। अरे नहीं भैया वो भी चमक रहा है हीरा तो वो भी चमकता है, आपका भी उतना ही चमक रहा है।
लेकिन आपका रेट 10,000 रुपया ज्यादा है। तो उस तरह के प्रॉब्लम को एक सेल्समैन कैसे अपने कस्टमर से डील करे, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मेन चीज जो है, सबसे पहले इसमें आपको आपके सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे पहले तो आपको आपके सेल्स का जो स्टाफ है उनको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। डायमंड के 4 C's जो रहते हैं वो खाली कलर, कट, कैरेट एंड क्लैरिटी, ये आप बता तो देते हो, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके सेल्स पर्सन को भी ये चीज है। अगर जो आप जैसे कभी कंपेयर करते हो कि जैसे ये मैं गोल्ड में बताऊंगा तो आपको थोड़ा इजीली समझेगा कि 22 कैरेट का जो रेट रहता है और 18 कैरेट का जो रेट रहता है, तो 18 कैरेट का रेट इज ऑलवेज लोअर देन 22 कैरेट रेट। तो ये हम इजीली कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं कि 18 कैरेट में गोल्ड कम रहता है, इसके लिए ये। तो सेम थिंग, अगर जो कस्टमर ये आपका जो सेल्स पर्सन है उसको समझ में आ जाए कि वो सामने वाला आपका कॉम्पिटिटर व्हाट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ही इज सेलिंग एंड एट व्हाट रेट, तो फिर आप उसको वो और इजीली ये कन्विंस कर सकता है। दूसरा, डायमंड में कस्टमाइजेशन काफी हो सकता है, सो यू कैन ऑलवेज प्रोवाइड द सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो आपके बाजू वाले शोरूम वाले प्रोवाइड कर रहा है विथ द सेम क्वालिटी एट द सेम प्राइस। तो अगर जो if he's selling EF VVS for say 50,000 rupees a carat and you are selling DEF VVS at 55,000 rupees a carat, तो आप उनको कस्टमाइज करके ये बना के दे सकते हो। वो बताना जरूरी है कि आप 50,000 में EF VVS आप भी उनको प्रोवाइड कर सकते हो। So main thing is कि पहले खुद को ट्रेन कीजिए, उसके बाद it will be more easier for the sales person to convince us to the customer कि आप अच्छे क्वालिटी के डायमंड्स या बेटर क्वालिटी के डायमंड्स प्रोवाइड कर रहे हो। थैंक यू हार्दिक भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आंसर दिया। आई एग्री, फुल्ली एग्री विथ यू। एक और क्वेश्चन है चैट में आ रहा है आपके लिए कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं, उनको चीजें पसंद भी होती हैं, फिर भी वो एक ही क्वेश्चन बार बार बोलते हैं, और दिखाओ और दिखाओ भैया, और नहीं है कुछ क्या? तो वो ऑलरेडी 100 200 300 रिंग देख चुकी है, तो भैया और कुछ खास दिखाओ। और वो जब भी आती हैं कुछ नया बताओ। अब हर थोड़े दिन में नया डिजाइन कहाँ से आएगा? तो उससे भी सेल्समैन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने ओनर से बोलता है, सर ये इनको और नया चाहिए, आप जाओ एग्जीबिशन से और माल लेके आओ और कहीं और से लेके आओ। तो ओनर जो है वो भी कंफ्यूज रहता है कि ऑलरेडी 100 एक ही आइटम में 100 डिजाइनें पड़ी हैं, फिर भी वो और दिखाओ का आंसर कैसे करें? सो ये क्वेश्चन लाइक ये चीज मैंने भी फेस की थी जब मैं बिजनेस ज्वाइन किया था कि कस्टमर और दिखाओ कहता है जरूर, बट इट इज टोटली डिपेंड्स फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। जिस टाइम में कस्टमर एंटर होता है तो तभी हम लोगों को एक आइडिया आ जाती है कि कस्टमर को और डिजाइन्स देखनी है, कि उनकी टेंडेंसी है कि वो ज्यादा डिजाइन्स देखना चाहता है कि एवरी पीस देखना चाहता है। जब अगर जो कस्टमर रहते हैं, कई कस्टमर रहते हैं जिनको प्रोडक्ट जल्दी दिखाने रहते हैं, तो उनको हम ट्रेज में दिखा देते हैं। बट अगर जो आपको लगता है कि कस्टमर को और ज्यादा वैरायटी दिखानी है, तो वी शुड रिमूव ईच एंड एवरी प्रोडक्ट फ्रॉम आवर ट्रे एंड शो इट टू देम। लाइक कई बार होता है कि हमारे पास सिर्फ 12 रिंग्स ही हो अगर जो डिस्प्ले में, और वो हमने अगर जो उनको दिखा दिया, तो आपकी अगर जो एक रिंग 1 लाख रुपए की भी है तो 12 लाख का प्रोडक्ट आप 1 सेकेंड में उनको दिखा देते हो, एंड इट ओनली कंफ्यूजेस यू कि ये 12 में से अच्छा कौन सा है। अगर जो आप हर एक चीज निकाल के एक सिंगल प्रोडक्ट उनको दिखाते हो, तो इट इज इजियर ऑल्सो फॉर द कस्टमर, ऑल्सो फॉर द सेल्स पर्सन, एंड आपका एक की जगह 12 मिनट भी लगता है। सो इट इज इजियर कि आप एक साथ बहुत बल्क प्रोडक्ट नहीं दिखाए और एवरी सिंगल प्रोडक्ट की खास जो चीजें हैं वो कस्टमर को बताए। So this will help you out in dealing with this thing. दूसरा ये है कि अगर जो आपके पास काफी स्टॉक है, तो आप ये चीज जरूर कर सकते हैं कि एक बार आपने वो ट्रे दिखा दी, रोटेशन में सेकेंड टाइम भी वही दिखाइए। अगर जो आप स्टॉकिस्ट है तो आप वही चीज बार बार दिखाएंगे तो भी कस्टमर को ध्यान में नहीं आता है। अगर जो उनको आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट अच्छे से दिखाया हुआ है। एक और क्वेश्चन था हार्दिक भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे। हेलो हार्दिक भाई। हार्दिक भाई, हाँ बोलिए। हाँ आप सुन सकते हैं ना? I can hear you. एक क्वेश्चन और था, ऐसा कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। हाँ ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है। तो बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं कि कस्टमर आए, अगर वो सोना भी लेने आया है, कुछ और भी लेने आया है, तो बाहर कुछ डिस्प्ले में देखेगा तो अट्रैक्शन होगा और वो खरीदेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं, वो आते हैं
बोलते हैं ये सब भैया तो बार बार आते देख के अच्छा देखा हुआ है, कुछ अंदर से नया दिखा हुआ है यार भैया, जो नया बन के आया है। तो ज्वेलर कंफ्यूज हो जाता है कि डिस्प्ले ज्यादा करें कि अंदर सामान ज्यादा रखें। इसके ऊपर आपका कहना? जो दिखता है वो बिकता है, दैट इज करेक्टली सेड। एंड ऐसा है कि अगर जो आपके प्रोडक्ट्स जो है, अगर जो आप कम डिस्प्ले करते हो, सो इट इज ईजियर फॉर कस्टमर टू लुक एट दैट प्रोडक्ट नाइसली। वो भी कंफ्यूज रह जाता है और आपके पास भी स्टॉक कम हो जाता है अंदर से दिखाने वाला, बिकॉज ये ज्वेलरी में टेंडेंसी डेफिनेटली है कि हमको अंदर से और प्रोडक्ट्स आप निकाल के दिखाइए, एंड जो डिस्प्ले में है वो बेचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि विंडो शॉपिंग नाम की जो चीज है दैट इज वेरी लेस इन ज्वेलरी। इट इज मोर कि जो आपके यहाँ पे कस्टमर आ रहा है, इट्स अ बायर, बस वो है कि वो हमारे यहाँ से ले रहा है कि किसी और के यहाँ से ले रहा है, वो आपके कन्वर्जन रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे कन्विंस भी कर सकते हो। सो अगर जो कोई भी प्रोडक्ट है जो डिस्प्ले में रखा हुआ है, सो इट शुड बी विजिबल इन सच अ वे कि आपका कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो एंड वो बैठे और वो आपका और स्टॉक देखना चाहे। सो हमारा मोटिव यही रहे कि कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स देखे। इट इज सेड इन आवर ज्वेलरी कि 70% ऑफ योर प्रोडक्ट इज सोल्ड द डे द डिजाइन इज मेड वेरी नाइसली, बट वो जो 30% है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो प्रोडक्ट कैसे दिखा रहे हो। 70% ज्वेलरी बेचना बहुत इजी है, अगर जो आपका प्रोडक्ट अच्छा बन गया है तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू सेल द प्रोडक्ट। मनोज भाई, I have one small question अगर आप ask it. Okay, so Hardik ji, thank you so much for your time. I just wanted to ask you any one particular step जो आप लोग अपने शोरूम में लेते हो to build customer rapport, जो आपको लगता है कि आप लोग अलग कर रहे हो बाकी लोगों से। Is this question for me or yeah, for you okay. you yeah. Can you please repeat the question? Yeah, as in any particular thing जो आप अपने शोरूम में कर रहे हो कस्टमर rapport build करने के लिए, कि आपको लगता है कि this other people should also follow? See, firstly the thing is कि I am one single individual जो मेरा शोरूम देखता है, एंड जो ओनर का कस्टमर के साथ रिलेशनशिप रहता है that is always considered the best, but what we try to do is कि हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है they are also on the same platform with the customers, क्योंकि at the end वो लोग कस्टमर को डील करते हैं, so their interaction level is definitely more than ours. So जब भी कोई कस्टमर आता है, so the way we talk with customers, the way we handle the customer, it has to be exactly the same our staff does. Like हम लोग कस्टमर को याद करते हैं, हम लोग कस्टमर एंटर होता है तो हमें पता रहता है कि कस्टमर कौन है, same ways our staff should not be left behind कि he should be mediator कि वो खाली प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए, उनका भी कस्टमर के साथ सेम रिलेशनशिप रहना चाहिए. This is what extra we do to handle our customers. And second thing is कि हम लोग का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रहता है, so those are very optimal marketing strategies what we use. हम लोग बहुत ज़्यादा bombard नहीं करते हैं with excessive marketing और promotions on Facebook, Instagram और WhatsApp, क्योंकि अगर जो आप और या कस्टमर को regularly call करके, because what we feel कि अगर जो आप कस्टमर को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर जो आप बहुत ज़्यादा bombard करोगे with the promotions और calls, so you tend to lose more customers, क्योंकि jewelry is something which they buy once in a while and not regularly. तो अगर जो आपके यहाँ पे second thing, अगर जो आपके यहाँ पे कोई offers वगैरह है, so I don't think in jewelry in itself offers बहुत ज़्यादा matter करते हैं, because in itself कि आपका jewelry जो है it is a expensive product. तो आप अगर जो ज्वेलरी लेने आ रहे हैं और कोई 30 ग्राम की चीज लेने आ रहे हैं, तो आपके पास पहले पॉकेट में 1 लाख रुपीस रहना चाहिए, जिसमें 10,000 रुपीज मेकिंग है, उसमें से आप 2,000 रुपए 20% डिस्काउंट दे रहे हो. So 98,000 still you should have it. So jewelry is not a product which should be given on a discount, but it is an art which should sell in itself. Really lovely. Thank you so much, Hardik. क्रांति जी. हाँ, हमारे साथ दीपक जी है देवरूपकर ज्वेलर्स से. वो काफी हमारे अच्छे पाठशाला के स्टूडेंट है और बहुत हमेशा प्रशंसा करते हैं. उनको 2 मिनट बात करनी है, स्पेशली जब हम मराठी पाठशाला लॉन्च कर रहे हैं, और उनको शायद प्रवीण जी से भी बात करनी है. देवरूप जी. यस, थैंक यू. और पूरे पाठशाला टीम को हमारी तरफ से बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ये कंसेप्ट लाए हैं, और सबसे पहली बात कि लॉकडाउन में आप लोग सभी के लिए
नॉलेज अप कर रहे हो, हर किसी को देवरूप जी अपग्रेड कर थोड़ा रहे अपना हो। इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। देवरूप जी थोड़ा कहाँ से हैं आप और हाँ, किस शॉप में हैं? मेरी शॉप दादर में है, मैं बॉम्बे से हूँ। हमारे शॉप का नाम है मंगल मूर्ति ज्वेलर्स, और क्रांति मैडम जी को मैं जीजेसी के कई मीट्स में मिला हूँ, उनसे काफी अच्छा इंटरेक्शन 2-3 बार अच्छी तरह से हुआ था। तो मैंने जब भी क्रांति जी को कहा कि भाई आप मराठी में एक पाठशाला का आयोजन कीजिए, तो उन्होंने, मैंने सिर्फ एक कहा और मुझे लगता है एक आधा मिनट भी नहीं हुआ, आधा मिनट के अंदर भी तुरंत उन्होंने कह दिया ठीक है, हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं प्लान कर देती हूँ, आप तैयारी रखिए कि आपके सभी लोगों के लिए। बट रियली मैं कहता हूँ कि पाठशाला का ये जो आपने प्रयोजन किया है, ये बहुत ही अच्छा है। और ये और लॉकडाउन के समय जो आपने सबको जो ज्ञान बांट रहे हैं, और प्रवीण जी के भी मैंने तारीफ करूं ऐसे नहीं, बट जो है जिसको हम झुटला भी नहीं सकते हैं। और प्रवीण जी का जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से जिस रैपो में उनका एक बार जो चालू होते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पाठशाला पूरी ही नहीं हो, ये पाठशाला की घंटी बजनी ही नहीं चाहिए, ये हमें कंटिन्यूअस चालू ही रहनी चाहिए। बट रियली थैंकफुल टू ऑल पाठशाला मेंबर, और जिस तरह से, जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से और जिस लगन से आप ये इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो, इट्स रियली अदर टू फॉलो, अदर मेंबर्स टू फॉलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो संडे को हम चाहेंगे कि बड़े नंबर से मराठी लोग आ जाए। पहला दिन है 101%। तो प्लीज थैंक यू सो मच। आई थिंक मनोज जी, सुमित जी, शुड वी लेट अस वाइंड अप। यस, लेट्स क्लोज फॉर द डे। थैंक यू सो मच। प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक जी बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलेंगे हम पाठशाला में, तमिल में सैटरडे को और संडे को मराठी में। थैंक यू हार्दिक भाई, थैंक यू प्रवीण भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हार्दिक भाई, थैंक यू टू एंटायर टीम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टीम पाठशाला फॉर हैविंग अस।